to science online class, and we have to do the chapter number 3, atoms and molecules. Very soon this chapter is going to be finished. We have seen so many theory portions, molecular formula, atomic mass, all the things we have completed till now. But some of the most important things in the next upcoming lectures, either it will be 4 or 5, I don't know, but whatever will be the lectures, actually we will talk about the numericals, all the numericals, mole concepts, how to find number of moles, what is the molar mass, what is the gram atomic mass, so many things we have to see, and how to form the compounds. And this particular lecture, I think this is the lecture number 14. In this lecture number 14, we have to see the most important thing. So please concentrate your attention here only on the board. See here, what is the thing? Rules for writing the chemical formulas. Before this, already I have talked about how to make the formulas. ये बहुत ही important part है. This is the one of the most important part of your chapter. इस चैप्टर में हमने जितनी भी चीजों को डिस्कस किया हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम, आफ्टर दैट मॉलिक्यूल, आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर मास, एंड आफ्टर दैट केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो मेनी थिंग्स. बट ओवरऑल जो बेस पे बात करेंगे, क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो हमेशा केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर है, and which is related to the valencies. Valencies also we have discussed in my last lecture. Number of the electrons which are donated, either which have been taken from the another element, otherwise the number of the sharing electrons in case of the molecules. This is called the valency of any atom or molecule. Now right now see how to make the chemical formula, how with the help of the valencies, with the help of the number of ions, how we can frame the formula. This is the thing today we have to discuss. Look here, rules for writing the chemical formula. Topic पे बात करते हैं. Most of the compounds are made by the two elements. Actual में होता ये है. Right now you will see it also. जितने भी compounds होते हैं, actually they have been formed only by the two elements. So ऐसा कोई भी compound हो, any of the compound which is made by only the two elements, जो केवल दो एलिमेंट से बना हो, actually it is called the binary compound. Binary means होता है two. Binary means होता है two. So all the compounds which have been made by only the two elements, by the atoms of two elements, so you can say these all are the examples of the binary compounds. There are so many examples you can say. For example, sodium chloride, sodium ion and chlorine ion से बना हुआ है. Sodium cation, chlorine cation, aluminium sulfate. So वो किससे बना है बेटा? Aluminium cation से, और sulfate anion से मिलकर के बना हुआ है. And after that calcium chloride, calcium और chloride ion से मिलकर के बनता है. And after that calcium carbonate, ये carbonate polyatomic ion. I have discussed with you carbonate ion, anion होता है, and one is the calcium ion. Calcium ion is the cation and carbonate ion is the anion. And when they share their electrons from each other, so they form the calcium carbonate. So calcium carbonate ये भी two किससे बना है बेटा? एलिमेंट से बना है. तो मैक्सिमम जो टू एलिमेंट से बनते हैं, these are called the binary compounds. Right now see rules देखिए. First, when a metal react with the non-metallic elements. अब कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के आपस में रिएक्ट करने के बाद, आपस में जुड़ने के बाद, ज्वाइन होने के बाद द कंपाउंड इज एक्चुअली फॉर्म्ड. अब राइट नाउ सी जनरली कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, जनरली ऑल द मेटल्स they have the excess of electron, and that's why they want to give the electrons. And same like that all the non-metals, they want to accept the electrons. Non-metals का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को वो लेना चाहते हैं, मेटल्स का नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहते हैं. तो जनरली जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑलवेज बाय द मेटल विद द नॉन-मेटल. तो ज्यादातर ये होता है कि when the metal react with the non-metallic element, जब एक मेटल्स वाला एलिमेंट
नॉन मेटल्स वाले एलिमेंट से रिएक्ट करता है, सो जनरली द मेटल्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रूल बताया जा रहा है आपको। तो जब भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला भी बनाएंगे तो जो मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करेंगे, इट विल ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से पे लिखा जाता है या वहीं से स्टार्ट किया जाता है। एंड द नॉन मेटेलिक एलिमेंट दीज आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। उनको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। मेटल्स ऑलवेज हैव बीन रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and non-metals always have been written on the right hand side while framing the chemical formula। जब भी chemical formula हम लोग frame करेंगे, manufacture करेंगे, बनाएंगे, metals always we will write down on the left hand side and non-metals we have to write down on the right hand side। एक बात। second, they share each other valencies to make a compound। उनकी जो valencies होती है in form of इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो वैलेंसीज होती है जिसको हम लोग आयंस बोलते हैं, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। आइदर वो प्लस और माइनस हो सकता है। इफ इट इज प्लस मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड, अगर वो माइनस है मींस इट विल बी एक्सेप्टेड। सो दे शेयर ईच अदर वैलेंसीज। जो भी एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर कर लेते हैं और उनको वो जो नंबर होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होता है वो मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट they make the compound। So for making the compound actually they have to share each other valencies। For making the compound they have to share each other valencies। एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करते हैं और उसके बाद ही कंपाउंड बनता है। अब देखो यहाँ पे जो ये टेबल दिया गया है, whatever I have written here and it is also given at your book। बुक में भी है, मैंने भी लिखा है। Why I have written here? मैंने यहाँ क्यों लिखा है? To explain in a better way। बुक से आप डायरेक्ट पढ़ोगे नहीं, यहाँ पे लिख के समझाऊंगा तो हो सकता है पढ़ो बाद में। So this is very very important thing for you all। इसके पहले भी मैंने मेटल्स के लिए आपको बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी क्या वैलेंसीज होती है एंड आफ्टर दैट नॉन मेटल्स की क्या वैलेंसीज होती है। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसीज एंड सम ऑफ द नॉन मेटल्स एंड सम ऑफ द मेटल्स whatever their valency, whatever their atomic symbol and the number of electrons means in terms of their valencies we have seen in the tableized form। आज भी हम लोग उसी तरीके के बारे में बात करेंगे, but especially today we will talk about the name of the valencies, name and the charge of some of the ions। ions की पूरी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। some are the polyatomic ions। आयंस जो होता है वो पॉली एटॉमिक भी हो सकता है या मोनो एटॉमिक भी हो सकता है। अगर वो एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज शो करता है सो उसको हम लोग मोनो एटॉमिक आयन बोलते हैं। ओके। एंड इफ इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, अगर वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है और उसके ऊपर सेम चार्ज है, सो इट इज कॉल्ड द पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब देखते जाओ भैया। नेम ऑफ द आयन, सिंबल, charge next symbol, name of the ion, one by one we have to see। first देखो हाइड्रोक्साइड आयन सिंबल होता है OH और ऊपर लिखा मैंने केवल माइनस। केवल माइनस का मतलब होता है एक। यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4 तो इसका मतलब है ओनली 1। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट किया जाता है OH माइनस से। OH minus shows that it has the negative valency। इसके पास नेगेटिव वैलेंसी है and it will take 1 इलेक्ट्रॉन और ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, OH के पास क्या है बेटा? नेगेटिव वैलेंसी है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस, चार्ज इसका है बेटा -1 और दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनायन। ये एग्जांपल किसका है? एनायन का है, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव वैलेंसी है। एनायन कैसे फॉर्म होता है? व्हेन द एलिमेंट्स एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रल एटम किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं एंड इन दिस वे द एनायन इज फॉर्म्ड। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, चार्ज -1। याद भी करना है, मल्टीपल टाइम्स यूज भी करना है एंड यू विल यूज दिस ऑल द थिंग्स मल्टीपल टाइम्स
इवन इन द 9th क्लास, इवन इन द 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, व्हेनेवर यू विल गो। और इस तरीके से ये केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। नंबर सेकंड देखो बेटा, बाई कार्बोनेट आयन। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स आयन नहीं लिखा है, सेम थिंग इज देयर, बाई कार्बोनेट आयन। नेम भी याद रखना है, बाई कार्बोनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, दैट इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे ओनली माइनस है, सो -1। इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए -1 इज द चार्ज। नेक्स्ट थर्ड, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट नेम अलग अलग है भैया, नाइट्रेट अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है। नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, NO2 माइनस, नाइट्राइट आयन -1, दैट इज द चार्ज। नेक्स्ट एसीटेट आयन। आपने एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, मैं बना के भी बताऊंगा। एसीटेट आयन सिंबॉलिक नोटेशन CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। राइट नाउ यू कैन सी कि ये जो एसीटेट आयन है, इट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देयर आर द 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ज्वाइन होने के बाद ये आयन का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH3COO माइनस। अब इसके साथ कोई भी मेटल जुड़ेगा तो केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। सोडियम जुड़ गया, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम जुड़ गया, पोटेशियम एसीटेट, मैग्नीशियम जुड़ गया, मैग्नीशियम एसीटेट। इवन आई विल फॉर्म आल्सो चार्ज -1, सोली ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड क्या होता है, ब्रोमाइड Br माइनस। अब ये जो ब्रोमाइड है ये मोनो एटॉमिक आयन है, क्योंकि ब्रोमाइड में केवल Br है, केवल ब्रोमीन है। Br जो होता है दैट इज द सिंबल ऑफ द, दैट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ द ब्रोमीन एलिमेंट। लेकिन जब इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, चार्ज आ गया माइनस, सो ब्रोमाइड Br -1 इज द चार्ज। सेम लाइक दैट आयोडाइड। आयोडाइड बना है आयोडीन से, आयोडीन न्यूट्रल था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट किया और बना लिया I- आयोडाइड, ठीक है। चार्ज इज द अगेन -1। नेक्स्ट सल्फाइट, सल्फाइट नॉट सल्फेट, सल्फाइट सिंबॉलिक नोटेशन SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस से क्या मतलब है कि सिंबॉलिक नोटेशन तो SO3 है, इट हैव बीन मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द सल्फर एटम विद द ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन और सल्फर दो एलिमेंट के ज्वाइन होने के बाद ये सल्फाइड का निर्माण हुआ। इसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 2 माइनस। व्हाट इट शोज दैट 2 माइनस का मतलब ये है कि जो सल्फाइड था, SO3 पहले न्यूट्रल था, उसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। इसको हमेशा स्टेबल होने के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इसलिए 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉनों को उसने लिया है। एंड चार्ज यू कैन सी -2। कार्बोनेट आयन, आपने बहुत बार इस नाम को सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो बनता कैसे है, मैग्नीशियम जब कार्बोनेट आयन से मिलता है, देन आफ्टर कार्बोनेट सम कार्बोनेट मेटेलिक कार्बोनेट हैव बीन फॉर्म्ड। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, ये भी एक पॉलीएटॉमिक है, कार्बन और ऑक्सीजन के ज्वाइन होने के बाद बना है। इट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बन रहा है। आप देखिए CO3, ये जो नीचे 3 लिखा होता है वो ये बताता है कि 3 ऑक्सीजन के एटम एक कार्बन के एटम के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ऊपर जो 2 माइनस लिखा हुआ है वो चार्ज बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है, टेकन किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। 2 माइनस सोर्स करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने लिया। चार्ज देखो -2, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है। और इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी व्हाइल फ्रेमिंग द केमिकल फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। आपने देखा होगा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NaSO4 और ब्रैकेट लगा के 2। कैसे बनता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सल्फेट आयन,
कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, so many sulfates are there you have seen, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ठीक है। अब अगेन इट इज द पॉलीएटॉमिक, सल्फर और ऑक्सीजन के ज्वाइन होने के बाद बन रहा है ना, 2 माइनस, एंड दैट्स व्हाई चार्ज आर -2। नेक्स्ट देखो सल्फाइड, कंफ्यूज नहीं होना, इसके पहले सल्फाइड आया था, देखिए आप सल्फाइड तो वो SO3 होता है 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, और एक होता है सल्फाइड IDE, सल्फाइड आयन रिप्रेजेंटेड बाय S 2 माइनस। इट इज द मोनोएटॉमिक आयन, केवल सल्फर है यहाँ पे, only it have been formed only by the single atom, and that's why single atom of the element, तो सल्फाइड मतलब केवल S 2 माइनस, 2 माइनस सोर्स, it will accept 2 extra electrons, and that's why charge you can see -2। same like that फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट का फॉर्मूला है PO4 3 माइनस, 3 माइनस shows that it will take 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सो फॉस्फेट PO4 3 माइनस, एंड चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट -3। नेक्स्ट पोटेशियम आयन, तो इसके बारे में तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, ये एक मेटल होता है, न्यूट्रल मेटल, और ज्यादातर इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड दैट्स व्हाई हिज नेचर इज टू डोनेट दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ही वांट्स टू डोनेट, और उसके हिसाब से जब ये आयन बनाएगा पोटेशियम आयन, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज K+, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो केटायंस बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा डोनेट करते हैं, ओके। पोटेशियम आयन K+ से शो किया जाएगा चार्ज +1। नेक्स्ट सोडियम आयन, और ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 होता है, एंड दैट्स व्हाई इनकी वैलेंसीज 1 ही होती है, +1 होती है। चार्ज भी आप देखो +1 सोडियम Na+, सोडियम आयन चार्ज +1। नेक्स्ट आते हैं बेटा मैग्नीशियम आयन, लिखा नहीं मैंने आयन, लेकिन सब आयन है। मैग्नीशियम आयन Mg2+, शो करता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको वो डोनेट करना चाहता है, और इसने डोनेट कर दिया तो आयन बना लिया किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम आयन Mg2+, चार्ज +2। सेम लाइक दैट कैल्शियम आयन, ये भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, यू कैन सी Ca2+, डोनेट कर दिया, कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन हो गया Ca2+, चार्ज +2। नेक्स्ट लेड आयन, लेड जिसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं, ठीक है, लेड आयन Pb, लेड आयन Pb2+, चार्ज +2। ये जो लिखा है Pb, दैट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ द लेड, एंड दिस ऑल आर द नेम्स ऑफ द मेटल्स। अभी इन लोगों ने आयन बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो आयरन, अब यहाँ पे जो आयरन है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है, सम ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो देयर व्हिच शोस मोर देन 2 वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं which shows more than 2 वैलेंसी, जो एक या एक से ज्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं, मतलब इनके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आयरन 2 प्रकार के केटायंस बनाता है। जब ये फेरस आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसका लैटिन नेम होता है फेरम, तो आयरन को फेरम मानते हैं, फेरम के हिसाब से इसका एटॉमिक सिंबल होता है Fe। अब ये 2 प्रकार के केटायंस बनाता है, एक तो फेरस, दूसरा फेरिक। फेरस सल्फेट भी बना सकता है, फेरिक सल्फेट भी बना सकता है, ये देता है, सल्फेट लेता है, तो अगर इसको सल्फेट के साथ कंबाइन करूं तो फेरस सल्फेट नेम ऑफ द कंपाउंड, फेरिक सल्फेट नेम ऑफ द कंपाउंड। फेरस के केस में ये क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, सो यू कैन सी आयन क्या बनेगा, सिंबॉलिक नोटेशन Fe2+। Fe2+ ये शो करता है कि ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो फेरस आयन बनाता है Fe2+, चार्ज +2। और उस केस में जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है
उस केस में फेरिक आयन बना लेता है Fe3+, और ये जो दोनों केटायंस हैं दीज आर द आयरन के ही हैं। आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जिन लोग एक से ज्यादा वैलेंसी सोर्स करते हैं, सो वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ द एलिमेंट्स हैव द वेरिएबल वैलेंसी। उसी का एक एग्जांपल है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल होता है बेटा कॉपर एक्चुअली शोज द टू काइंड्स ऑफ द वैलेंसीज। इसी के तरीके से जैसे ये फेरस और फेरिक बनाता है, कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक बनाता है। क्यूप्रस के केस में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता और क्यूप्रिक के केस में वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। आगे बढ़ो भैया, Fe2+, Fe3+, ठीक है, +2 चार्ज +3 चार्ज। नेक्स्ट देखो जिंक सिंबॉलिक नोटेशन Zn2+, Zn2+ मींस इट शोस इट हैज डोनेटेड द 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसने 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। चार्ज +2। और कुछ के बता दूं मैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, वेट फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट कॉपर। अगर कॉपर के बारे में बात करेंगे, कॉपर आयन, सो Cu2-, ठीक है, 2+, सॉरी Cu2+, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा जनरली दे वांट टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो देखो Cu2+, कॉपर आयन, चार्ज +2। सेम लाइक दैट एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन के केस में क्या होगा, Al3+, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ही वांट्स टू डोनेट सच 3 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इटसेल्फ स्टेबल एंड दैट्स व्हाई चार्ज यू कैन सी +3। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट इतनी नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप जरूर रखो अपने पास। एंड राइट नाउ वी विल सी हाउ वी कैन फ्रेम द chemical compounds. How we can frame the chemical compounds. Look here, 22 मिनट हो गया। केमिकल कंपाउंड्स अब बनाना सिखा रहा हूं मैं फटाफट, और बहुत मजेदार चीज है बेटा। जिसको आ गया फिर उसको ऐसा आ जाता है, बहुत मजा आता है ना। लुक हियर, अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट आपको बोला जाएगा क्वेश्चन, मैक द chemical formula, make the chemical formula of following compounds, make the chemical formula of following compounds. So we will see the first name, what is there, sodium sulfate. First is this is the question which will be directly asked. सोडियम सल्फेट, आपको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा। सोडियम सल्फेट के लिए व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, सी हियर, ऐसे 2 कॉलम बनाते हैं, एक लिखते हैं आयन, एक लिखते हैं चार्ज। आयन चार्ज किससे किससे बना है बेटा, सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन से बना है। सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन, Na के पास होता है +1, सल्फेट के पास होता है 2-। ये अभी मैंने आपको बताया। इसके पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही तो डिस्कस कर रहे थे। आयन, सोडियम सल्फेट 2 प्रकार के एनायन से बना हुआ है, जिसमें सोडियम आयन Na जो होता है +1 होता है, सल्फेट SO4 2-। ये केटायन, ये एनायन। चार्ज कितना होता है भैया इसके पास, +1। चार्ज कितना होता है, -2। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले मैंने आपको जो रूल्स रेगुलेशंस बताए उसमें मैंने ये बोला कि जो मेटल होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। आप देखो मेटल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और राइट हैंड साइड में किसको लिखा है, नॉन मेटल्स को लिखा हुआ है। नॉन मेटल कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर है, ठीक है। और जो डोनेट करता है वो मेटल होता है। इसको लेफ्ट में लिखा, इसको राइट में लिखा। पहली बात सेटिस्फाई हो गई। दूसरा बात ये लिखा था कि दे विल शेयर ईच अदर वैलेंसी
टू फ्रेम द कंपाउंड, टू मेक द कंपाउंड, कंपाउंड को फॉर्म बनाने के लिए ये लोग एक दूसरे की वैलेंसी को ले लेंगे, शेयर कर लेंगे। उसकी वैलेंसी को ये ले लेगा, सामने वाले की वैलेंसी को दूसरा ले लेगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। सो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na को क्या मिलेगा भैया 2, Na को क्या मिलेगा, इसकी वैलेंसी मिलेगी सल्फेट की, Na को मिलेगा 2, तो यहाँ पे -2 नहीं लिखते हैं, ओनली 2 लिखते हैं। सो Na2, SO4 को क्या मिलेगा, ओनली 1, SO4 को क्या मिलेगा 1, तो SO4 को केवल लिखते हैं SO4। सो दिस इज योर आंसर। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। डायरेक्ट भी बना सकता था मैंने नियम कानून से बनाया। आयन चार्ज, आयन यहाँ पे लिख दो, चार्ज अब इसके ऊपर जो है ना उससे कोई मतलब नहीं है। Na को मिलेगा इसका चार्ज सल्फेट का जो होता है -2, सल्फेट SO4 को मिलेगा सोडियम का चार्ज जो होता है +1, तो Na के पास पहुंचा 2, SO4 को मिला 1, SO4 को मिला 1। दूसरा एग्जांपल बेटा ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अगेन सेम थिंग आई हैव टू डू, मैंने लिखा आयन एंड आफ्टर दैट चार्ज। आयन कौन कौन से बना है, एक तो मैग्नीशियम से बना है 2+ और एक सल्फेट से बना है 2-, सही है। आयन क्या होता है, मैग्नीशियम आयन, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले, Mg2+ सल्फेट 2-। आपको इन चीजों को लर्न करना होगा, याद करना होगा। हो सकता है अभी आपको एकदम से याद नहीं है, लेकिन कई बार आप मल्टीपल टाइम यूज करोगे याद हो जाता है। इसका चार्ज आप देख सकते हैं +2, इसका चार्ज आप देख सकते हैं -2। क्रॉस में ले लो, Mg को ये मिलेगा, SO4 को ये मिलेगा, फॉर्मूला बनेगा आप देखिए, Mg को मिला 2, +- से मतलब नहीं रहता, Mg को मिला 2 और SO4 को मिला 2। अब जब SO4 को 2 मिला तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, रॉन्ग है। पूरे SO4 को 2 मिला तो पूरे SO4 को 2 मिला तो SO4 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और बाहर लिखेंगे 2, क्योंकि पूरे के पूरे सल्फेट को 2 एटम्स मिल रहे हैं, एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर किया जा रहा है। Mg is taking -2, that's why I have written 2 here। यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ क्योंकि Mg केवल एक एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक को जो भी वैलेंसी मिलती है उसके लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया Mg2SO4 2। अब होता क्या है नियम कानून में, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं और कैंसिल होकर के क्या बना लेते हैं MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप ये लिखोगे ये भी सही है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में अगर 2/4 आया तो ये भी आंसर है, लेकिन इसको जब कट करोगे तो आएगा 1/2 और ये दिस इज द एक्चुअल आंसर। सेम लाइक दैट Mg2SO4 2 कैंसल, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट देखना, इसी में मैं एक और सल्फेट लेता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट। लुक हियर, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए सेम लाइक दैट आयन चार्ज, एल्यूमिनियम आयन Al3+, अभी बताया आपको 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सल्फेट का तो सेम लिखेंगे बेटा SO4 2-, यहां तक बात सही। चार्ज कितना है इसके पास +3, इसके पास -2। एल्यूमिनियम को इसका मिलेगा, सल्फेट को इसका मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट मैं फॉर्मूला लिखूंगा Al, एल्यूमिनियम के साथ 2 और SO4 के साथ, अब SO4 में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या मिलेगा इसको 3। क्या 2 और 3 कैंसिल होंगे, नहीं। सो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 3 और इसको पढ़ते ऐसे हैं Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice या Al2SO4 3, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। वन मोर थिंग, इसी में आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए। तो ये तो सल्फेट के अपन ने कुछ बना लिए। नेक्स्ट दूसरी वैरायटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं बनाते जा रहा हूं नंबर 4, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लुक हियर, आयन चार्ज
same. What is the magnesium ion? Mg2 plus. What is the chloride? क्लोराइड के बारे में अभी मैंने आपको बताया, मोनो एटॉमिक होता है Cl और केवल -1 होता है ना। अब देखो चार्ज यहाँ पे है +2, यहाँ पे चार्ज है -1, ये इसका शेयर करेगा, ये इसका शेयर करेगा। फॉर्मूला में इधर बना रहा हूं, मैग्नीशियम को मिला -1 मतलब ओनली Mg, Cl को मिला 2 तो लिखूंगा MgCl2। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि Cl जो है वो केवल क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, दो एलिमेंट नहीं है अलग अलग। Cl का मतलब क्लोरीन, तो डायरेक्ट 2 लगा सकते हैं, लेकिन पॉली एटॉमिक के केस में ब्रैकेट लगाना पड़ता है जब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है। सो MgCl2 दैट इज द फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाने वाला। लुक हियर अगेन, वन मोर 2 3 आई कैन टेक। देखते चलो आप नंबर 5। नंबर 5 लुक, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आयन चार्ज, कैल्शियम आयन होता है Ca2+। अभी याद नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों के 2+ होते हैं, है ना। अच्छा, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने के लिए O2- हो सकता है मैंने ऑक्साइड लिखा ना हो, लेकिन याद रख लेना ऑक्साइड बनता है केवल O से और 2-, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका 2+, इसका 2-। अब चार्ज यहाँ पे है +2, यहाँ पे -2। दे विल शेयर ईच अदर चार्ज, एक दूसरे के चार्ज को शेयर करेंगे। अदरवाइज इनमें से दे विल शेयर ईच अदर वैलेंसीज, एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा, Ca को मिला 2 और O को भी मिला 2, तो Ca2O2। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए तो बना CaO। दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट वन, लुक हियर, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद आओ बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयन चार्ज, एल्यूमिनियम आयन Al3+, ऑक्साइड O2-, सेम चार्ज लिखूंगा +3, चार्ज लिखूंगा -2, शेयर करेंगे ईच अदर वैलेंसी, ठीक है। एल्यूमिनियम को मिलेगा 2 तो लिखना पड़ेगा Al2, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि Al जो है दैट इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट एल्यूमिनियम। ऑक्साइड को मिला 3 O3, सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, मैं सीधा लिख सकता था Al2O3, लेकिन मुझे ये आपको बताना था कि एल्यूमिनियम आयन Al, ऑक्साइड का मतलब O, इसकी वैलेंसी -2 वो Al को मिलेगी, इसकी वैलेंसी +3 वो ऑक्सीजन को मिलेगी। फाइनली दे विल मेक Al2O3, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, 33 मिनट हो चुके हैं, वीडियो इज लेंथी, सो टिल हियर वी हैव टू स्टॉप। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।